आप देख रहे हैं प्रोग्रेस बार दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एज ए बेटर वे में करके दिखाया है, जो कि इंटरव्यूअर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है। अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो नो डाटा फाउंड आ गया। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि इसको और अच्छे से हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली dispatcher.io हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट लोडिंग विथ पेजिनेशन। देख सकते हैं हमारा लोडिंग भी शो करता है, जैसे ही हम इरेज करते हैं लोडिंग शो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये सारे केस को हम हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर यू माय एक्सपीरियंस फॉर द स्विगी इंटरव्यू। एक्चुअली इट वाज इंटरव्यू for SD role for an Android application Instamart. Okay, so this was interview for the Android domain for SD role. Okay, so actually this was a machine coding round. Okay, so in that machine coding, actually we had an agenda of like what task they have given to me and what I had to do, and what was the recommended part and what was the bonus part. Okay, so actually this was a machine coding round, and इसमें actually हमें ना they will assign you a one task. In that you have to code in Android Studio. You have to in Android Studio should be installed in your PC, and in that you have to code it in. Then whatever task they will give, you have to code. Then they will give you an access to internet also. You can browse whatever library you can browse in that, and but other than library you can't do, other than searching library you can't do any other thing in that. Okay, you can search for other stuffs, like some of the errors also you can search, but not the code you have to search, not related to any code thing. Okay, so you have internet access. So the task you will get, you have to complete it in either 2 hour or 1.5 hour. It depends what they will tell you. Okay, so let's discuss what task you will get. So basically you will definitely get a super high chance, there is a chance like you will get a API. Okay, you have to fetch data from the API, but that should have a pagination. Okay, it's like there is a very high chance like the pagination should be there, like whatever task they will give, in that pagination should be there, and that would be in a bonus part. Okay, so in that like I got a similar task, like the similar task in that I got a movie API. They gave me a movie API which has two endpoints. Okay, one for search and one for to get details of items, like movie item. Okay, one API was there to get search details, like we have to search on the query. By writing the query we will have to search, and then we will get movie items, and in the movie items when we click anything, then it should go to the next screen that will show our movie details. Okay, so I had to complete that in 1.5 hour in my case. Okay, so what actually I had to do, like what all the things I had to do, I need to design two screens. One screen would have a search box. In that if we will search anything, then only the list of movies will appear, and clicking on any movie item will open a details screen that will show the details of the movie, right? So next we had like bonus part and recommended part. So in recommended part we had to use Kotlin coroutines. It's recommended, we have to use. Okay, and the bonus part was a dagger hilt. Like if we use dagger hilt, then we have a plus point. If we don't use, then no issue. But that is a bonus part. If you don't use, no issue, but if you use, that would be a bonus part. Also the pagination was a bonus part. If you use pagination, then that's a plus point to you. If you don't use, then it's your choice. The point will not calculate, okay, in the bonus part. So recommended part is like you have to complete in the time. If recommended part is not completed at the time, then that would not be considered. So they push you to complete the recommended part first, and then you can do a bonus part.
and if you are confident enough, so you can do both the things in the selected time hour. Okay, so it's depend upon you. I would suggest like to complete a bonus part also, because that's not a big challenge here to do a pagination and use dagger hilt. If you don't know dagger hilt and pagination, I would cover everything in this video by doing a code. Okay, मैं पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कोड करके, पूरी एप्लीकेशन को बनाऊँगा that I had completed in interview. After that we will see that what questions they asked me after completing the project. Okay, so ऐसे you will get an idea कि क्या चीज़ करना चाहिए हमें कोड में, क्या मैंने क्या कोड में प्रॉब्लम फेस किया और क्या मतलब बेस्ट वे होना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, व्हाट यू शुड डू इन योर इंटरव्यू. ओके, सो मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए. इफ़ यू गिव एनी स्विगी इंटरव्यू इन द फ्यूचर, सो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, सारे प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूँगा, व्हाट आई फेस्ड एंड व्हाट यू कैन फेस एंड व्हाट यू शुड फॉलो बेटर वे इन कोडिंग, व्हाट दे एक्सपेक्ट. सो मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा, कोड करके बताऊँगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट कोडिंग. ओके, एज यू कैन सी कि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है. यहाँ पे मैंने जस्ट इसको क्रिएट किया है अभी. यहाँ पे मैंने सारे लाइब्रेरीज़ को ऐड कर लिया है. मैं यहाँ पे डैगर यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा बोनस पार्ट था. रेट्रोफिट एपीआई फेच करने के, एपीआई से डेटा फेच करने के लिए ये हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो. ग्लाइड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टू लोड द इमेजेस. ओके, HTTP भी ऑप्शनल है, यहाँ पे हम हटा सकते हैं इसको. ठीक है, लाइव डाटा हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. हम फ्लो यूज़ करेंगे, नॉट लाइव डाटा. आप लाइव डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड कर दिया. मैं ये सारे लाइब्रेरीज़ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो. और अगर सोर्स कोड चाहिए होगा तो वो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि हमें कोड चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड यू द कोड डायरेक्टली. ओके, सो यहाँ पर पेजिंग 3 हम यूज़ करेंगे. तो पेजिंग 3 हमारा बोनस पार्ट है ये भी. ठीक है, वो लोग जो हमें API प्रोवाइड करेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा. ये API हमारा है सर्च का और ये API है हमारा डिटेल्स का. ओके, मूवीज़ डिटेल्स, ये मूवी सर्च. ठीक है, तो हमें दो स्क्रीन क्रिएट करना है. एक हो जाएगा हमें सर्च क्वेरी को सर्च करके क्वेरी से हमें लिस्ट ऑफ मूवीज़ शो कराना है, और दूसरा हो जाएगा मूवीज़ डिटेल्स. ओके, सो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं. ओपन करके देखते हैं कि क्या आता है. यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमें जेसन का हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स है. ठीक है, तो हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे, एक पैकेज बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल. एंड इसमें हम जेसन टू कॉटलिन करेंगे. यहाँ पे एक प्लगइन है, यहाँ इसको यूज़ करके हम एक पोजो क्लास बनाते हैं. ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं मूवीज़ रिस्पॉन्स. ठीक है, मूवीज़ डेटा रिस्पॉन्स. तो ये हमें बनाकर दे देगा 2. ठीक है, तो ये जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे वो हमें प्रोवाइड करा देगा यहाँ पे एज अ पोजो क्लास. ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाता है सर्च. तो ये एरर आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक कुछ मिस्टेक है. यस, हमने सर्च स्ट्रिंग और पेज नंबर दोनों पास करना है, राइट. तो हम यहाँ पर पास कर लेते हैं. पहले इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से, या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे पास कर लेते हैं. सर्च स्ट्रिंग हम कुछ एवेंजर लिख लेते हैं, एवेंजर. एंड पेज नंबर में हम लिख लेते हैं 1. ओके, और इसको ओपन करते हैं. तो ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं सर्च डेटा आ रहा है हमारा. एक्चुअली ये हमारा डिटेल्स डेटा था.
मुझे बताने में मिस्टेक हो गया है। ये हमारा डिटेल्स है और ये हमारा सर्च डेटा है, ठीक है। तो हमें इसको भी रीनेम करना पड़ेगा, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, फिर से हम बना लेंगे। हम यहाँ से ये हो गया हमारा सर्च डेटा, जेसन टू कॉटलिन पेस्ट मूवी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा बन गया रिस्पॉन्स सर्च, टोटल रिज़ल्ट आया। तो ये हो गया हमारा सर्च डेटा, पोस्टर टाइटल, टाइप, ईयर एंड IMD ID, जो कि हमारा पहले स्क्रीन पे शो होगा। दूसरे स्क्रीन पे हमारा सर्च डिटेल्स शो होगा। तो ये हमारा सर्च डिटेल्स, सर्च आइटम पे जब क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स शो होंगे हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। तो जेसन टू कॉटलिन ये हो जाएगा हमारा एक मूवी आइटम का फुल डिटेल्स, जो कि नेक्स्ट स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको हम मूवीज़ डिटेल्स के नाम से सेव करते हैं, मूवी डिटेल्स रिस्पॉन्स, ओके। तो कुछ हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पोजो क्लास रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमारा हम एक क्योंकि हम डैगर हिल्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो डैगर हिल्ट का एक मॉड्यूल बनाएंगे, बट उससे पहले हम API सर्विस बना लेते हैं, ठीक है। API सर्विस के लिए हम यहाँ पर नेटवर्क पैकेज बनाएंगे। उसके बाद हम एक इंटरफेस बनाएंगे, API सर्विस का इंटरफेस बनाएंगे। इसको नाम रखेंगे मूवी API सर्विस। अगर आप कभी क्या बोलते हैं इसे, रेट्रोफिट अगर आप कभी यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि हाउ कैन वी मेक API सर्विस एंड ऑल, ओके। तो API सर्विस में हम मोस्टली गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गेट रिक्वेस्ट है, तो हम गेट रिक्वेस्ट डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारा गेट मूवी सर्च डेटा, ओके। तो ये हमारा रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ मूवी सर्च मूवी रिस्पॉन्स, ओके। ये हमें रिटर्न करेगा, ओके। सो यहाँ पे गेट में हमें हमारा ये API है सर्च का, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके लिख लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो ये है हमारा बेस, ओके, एंड ये हमारा क्वेरी पार्ट है, ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी सब डोमेन का पार्ट नहीं है, सब पाथ नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे जस्ट एज ए रूट लिखेंगे जो कि इसको डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेरी पार्ट आ जाता है। तो बेस को हम रेट्रोफिट जब बिल्डर क्रिएट करेंगे तो वहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वेरी लिख लेते हैं, जो कि हमारा ये 1 2 3 क्वेरी हो गया। तो क्वेरी की हो जाएगा हमारा API की। सो API की हम फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट रखते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे, या फिर हम यहाँ पर ही ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कांस्टेंट बना सकते हैं यहाँ पे API की करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेरी हो जाएगा सर्च क्वेरी, जो कि हमारा S नाम से है यहाँ पे, जैसे एज यू कैन सी S, एंड ये हमारा, हम इसको यहाँ पर क्वेरी लिख देते हैं जो कि स्ट्रिंग होगा, एंड आई एम सॉरी ये स्ट्रिंग है हमारा,
और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एट लास्ट, जो कि है हमारा पेज, वो भी हमारा स्ट्रिंग है, तो पेज नंबर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। एक रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट। बेटर होगा कि हम एक कांस्टेंट बना लें यहाँ पे, पैकेज यूटिल्स कांस्टेंट फाइल और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि हम एक अलग क्लास में अलग ऑब्जेक्ट फाइल बनाकर लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम और भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बेस यूआरएल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रिक्वेस्ट। दूसरा रिक्वेस्ट मैं बनाऊंगा जो कि है हमारा ये सर्च, ओके, ये है हमारा। तो इसका भी बेस यूआरएल हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा पाथ, तो ये हमारा पाथ इसका भी सेम हो जाएगा। गेट मूवी डिटेल्स, ये हो जाएगा क्वेरी हमारा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हमारा दो क्वेरी है। एक हमारा IMBD डेटा है, IMBD ID है, एक API की है। तो API की एक ये हो गया, और एक IMBD डेटा है, ID है, तो उसका की हमारा I है, और IMBD ID स्ट्रिंग, ओके। तो ये हमारा 2 रिक्वेस्ट रेडी है सर्विस पे। अब हम बना लेंगे हमारा डैगर हिल्ट का मॉड्यूल। तो उसके लिए DI पैकेज बनाएंगे। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे जो कि हमारा होगा API, सॉरी नॉट API, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। और सिंस ये डैगर हिल्ट है और इसको हम एनोटेट करेंगे, इसको हम इंस्टॉल करेंगे इन सिंगलटन कंपोनेंट में, ठीक है। सिंस ये हमारा मॉड्यूल होने वाला है तो इसको मॉड्यूल एनोटेट करेंगे। और डैगर हिल्ट में सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे मैंडेटरी होता है, हमारा सबसे पहला मेन काम होता है एक एप्लीकेशन क्लास बनाना, इसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये बिना इसके ये काम नहीं करेगा। तो माई ऐप एक एप्लीकेशन क्लास बना लेते हैं जो कि एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। एनोटेट करेंगे हम हिल्ट एंड्रॉयड ऐप और ऑन क्रिएट, और इसको मैनिफेस्ट में ऐड कर देंगे। और डोंट फॉरगेट टू ऐड द परमिशन, इंटरनेट परमिशन, राइट। सो वी वेयर इन दिस ऐप मॉड्यूल, ओके। सो इस ऐप मॉड्यूल में हम प्रोवाइडर्स डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइडर को डिफ़ाइन करना। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम रखेंगे प्रोवाइड। हम API सर्विस का इंस्टेंस बनाएंगे, ओके, प्रोवाइड API सर्विस। और ये जो हमें रिटर्न करेगा वो हो जाएगा मूवी API सर्विस, ओके। तो ये रिटर्न करेगा रेट्रोफिट बिल्डर बेस URL बिल्ड। तो बेस URL में हमारा हो जाएगा बेस URL। यहाँ पे हम API सर्विस, ओके, I think I did some mistake here. ये हमें API सर्विस ही देगा, सॉरी माय मिस्टेक। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको अलग अलग बनाने का, मतलब रेट्रोफिट का इंस्टेंस अलग बनाऊंगा और सर्विस का इंस्टेंस अलग बनाऊंगा।
तो मैंने इसको एक साथ मर्ज कर दिया है, तो एट द एंड हमें मूवी से पैसा सर्विस ही मिलेगा, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, ठीक है। इस कन्वर्टर फैक्ट्री में हम जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री यूज़ करेंगे, जिसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोवाइडर है जो कि प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड्स एनोटेशन लगाएंगे यहाँ पर, और ये एक सिंगलेटन है, तो ये सिंगलेटन, ओके। तो ये जब ऐप को रन करेंगे, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द जब ऐप हमारा इंस्टॉल होकर रन होगा फर्स्ट टाइम, तो ये जो इंस्टेंस है ये क्रिएट होगा और इसका एक टेम्प्रेरी फाइल बन जाता है। वहाँ से हम इसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इंजेक्ट को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट होगा कि हम इसको API सर्विस हमने बना लिया है, तो हम इसको रिपो से कनेक्ट करें, ठीक है। तो हम रिपो बना लेते हैं, बट रिपो बनाने से पहले हम सबसे पहले तो हमारा पेजिंग का काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा आएगा सर्वर से, तो उसको कैसे हम इनफाइनाइट स्क्रॉल में फ़िट कर सकते हैं, कि हम जब भी इसको स्क्रॉल करें तो वो इनफाइनाइटली स्क्रॉल हो। तो उसके लिए हमें पेजिंग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर पेजिंग 3 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरी। तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि जब हमारा डेटा सर्वर से आ रहा है तो उसको हमें पेजिंग सोर्स को यूज़ करके उस पर लोड कराना होता है डेटा, और फिर वहाँ से वो इनफाइनाइट स्क्रॉल का सारा काम होता है, ठीक है। तो हम पहले एक पेजिंग सोर्स बना लेंगे। तो उस पेजिंग सोर्स को बनाने के लिए पहले मैं पैकेज बनाता हूँ, इसका नाम होगा पेजिंग, और यहाँ पे एक पेजिंग सोर्स बनाएंगे। तो उसके लिए क्लास का नाम दे देते हैं मूवी पेजिंग सोर्स, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा पेजिंग सोर्स को। और इसमें 2 टाइप होता है, एक होता है हमारा पेज नंबर, ठीक है। तो हमारा जो पेज नंबर है वो हमारा इंटीजर है, राइट। ऐसा कि यू कैन सी हमारा जो पेज नंबर है वो एक इंटीजर है ना। सो हम यहाँ पर पेज नंबर को इंट लिखेंगे, और जो हमारा वैल्यू होगा, वैल्यू मीन्स यहाँ पे एनी है, तो पेज नंबर भी एनी हो सकता है, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट हमारे केस में इंटीजर है, ओके। सो हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो पेजिंग सोर्स का जो वैल्यू है, जो कि हमारा मॉडल में है, यहाँ पे इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, तो जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है मूवी रिस्पॉन्स में, जो हमारा ये सर्च है, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, लिस्ट ऑफ सर्च। एज यू कैन सी ये हमारा वैल्यू रिटर्न मिलता है हमें, जो कि हमें अपने UI पे शो कराना है। तो हम सर्च को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें 2 चीज़ यहाँ पर मिलेगा, एक गेट रिफ्रेश की मिलेगा और एक लोड मिलेगा, ठीक है। तो गेट रिफ्रेश की का मतलब ये होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 4 और ये 3, तो एक्चुअली गेट रिफ्रेश की में हमें ये होता है कि हमें एक एंकर पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। एंकर पोजीशन मीन्स कि जस्ट कंसीडर कि हमारा स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ डेटा शो हो रहा है, ठीक है, और उस लिस्ट ऑफ डेटा में अगर बाय चांस एक्टिविटी हमारा या फिर स्क्रीन हमारा रिफ़्रेश हुआ, ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, फिर कुछ भी हुआ और हम भूल चुके हैं, मतलब कि वो हमारा जो पेज है वो भूल चुका है कि वो किस पेज पे है, ठीक। मान लेते कि हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया, ठीक है, तो पेज को तो नहीं पता कि वो कौन से पोजीशन पे था पहले, तो उसी चीज़ को फाइंड करने के लिए ये जो गेट रिफ्रेश फंक्शन ओवररिडन फंक्शन है, ये हमें एंकर पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंकर पोजीशन प्रोवाइड करता है ये। तो इस एंकर पोजीशन को हेल्प से हम क्लोजेस्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा क्लोजेस्ट पोजीशन हो गया ये और ये, तो क्लोजेस्ट पोजीशन, जैसे हमें क्लोजेस्ट पोजीशन पता चलेगा तो हमें पेज कौन से पेज पे है तो हमें वो पता चल जाएगा, राइट। जैसे हमारा एंकर पोजीशन ये है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस, ठीक है। तो प्रीवियस को अगर हम माइनस कर देते हैं, प्रीवियस में अगर हम एक ऐड करेंगे तो हमारा 3 मिल गया, और नेक्स्ट में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हमें
3 मिल गया, राइट। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एंकर पोजीशन से हमारा ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, राइट। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन से पेज पे थे, ठीक है। आई होप ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमें स्टेट के अंदर से हमें एंकर पोजीशन प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। तो इस एंकर पोजीशन को हम यूज़ करेंगे, जो कि और नलेबल होता है। और इस एंकर पोजीशन को यूज़ करने के बाद हम स्टेट से क्लोजेस्ट पोजीशन निकाल लेंगे, ठीक है। इस क्लोजेस्ट पोजीशन में हम 8 पास करेंगे, जो कि हमारा एंकर पोजीशन है ये, ठीक है। और यहाँ से हम प्रीवियस की, जो कि हमें नॉट नल यूज़ करना है, तो प्रीवियस की निकालेंगे सबसे पहले। तो प्रीवियस की में हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। ये हमारा एंकर पोजीशन है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हमारा एंकर पोजीशन है, और इस एंकर पोजीशन पे हम प्रीवियस में एक ऐड करेंगे तो हमारा एंकर मिलेगा, राइट। प्रीवियस में अगर हम एक ऐड करेंगे तो हमें एंकर पोजीशन मिल रहा है। और सेम अगर मान लेते हैं कि हम या तो 2 केस हो सकता है, या तो हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे नो प्रीवियस, तो ये हमारा कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नल रिटर्न कर देगा। तो इसलिए हम नॉट नल लगाते हैं। या फिर अगर हम सबसे लास्ट पे हैं, सबसे लास्ट ऑफ द लिस्ट पे हैं, तो हमारा कोई नेक्स्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे हमारा प्रीवियस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम नॉट नल लगाएंगे यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट की निकालेंगे। नेक्स्ट की प्लस -1, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट की में -1 करेंगे तो हमें एंकर मिलेगा, प्रीवियस में +1 करेंगे तो हमें एंकर मिलेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे रिफ्रेश की मिल जाता है, ठीक है। इसको रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं हम लोड में। तो लोड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम ट्राई कैच लगा लेते हैं। लोड बेसिकली ये होता है कि हमें जो हमारा पेज है, पेज के हिसाब से हमें डेटा लोड करके देता है। मान लेते हैं पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है। तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें लोड करके डेटा देता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमारे पैरेंट्स यूज़ करके हम पेज नंबर निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पैरेंट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे की हमें पेज नंबर देता है, ठीक है। और अगर हमारा की यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नॉट नल है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देंगे पेज नंबर, और इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे पोजीशन या फिर पेज, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं पोजीशन देता हूँ यहाँ पे, और हम डेटा को लोड करेंगे इस पोजीशन को यूज़ करके, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो वो होगा यहाँ पे हम पहले तो API मूवी सर्विस, ठीक है। ये हमने डैगर यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। API सर्विस गेट मूवी सर्च डेटा, राइट। इसमें हमें क्या चाहिए, API की चाहिए जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। क्वेरी चाहिए और पेज नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्वेरी हम प्रोवाइड करेंगे यहीं से, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्वेरी एज अ क्वेरी एंड पेज नंबर। तो पेज नंबर हमारा ये हो जाएगा, पोजीशन, पेज नंबर पोजीशन हमारा स्ट्रिंग, एक्चुअली हमारा पेज नंबर है स्ट्रिंग, तो हम इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम इसको डेटा या फिर रिज़ल्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रिटर्न होगा यहाँ पे। ये एरर में हम यहाँ पे लोड रिज़ल्ट एरर, यहाँ पे एरर पास कर देंगे मैसेज, और यहाँ पे लोड रिज़ल्ट पेज, और यहाँ पे डेटा में रिज़ल्ट पास करेंगे, और हमारा प्रीवियस की एंड नेक्स्ट। प्रीवियस की में हम सबसे पहले तो कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो पोजीशन है, तो प्रीवियस की में जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस की में हमारा 2 केस हो सकता है, या तो हम
सबसे पहले पोजीशन पे या तो सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं। तो प्रीवियस की में मान लेते हैं कि सबसे पहले पोजीशन पे हम लोग हैं, पोजीशन हमारा 1 है, तो उस टाइम हमारा कोई प्रीवियस की नहीं है, तो नल एल्स पोजीशन -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की में हम क्या करेंगे कि हम इस पे चेक करेंगे कि क्या हम सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं। अगर हम सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं तो उस केस में हमारा नल पास होगा। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं? तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा पोजीशन है वो सबसे लास्ट पे तो नहीं ना है। तो वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास टोटल डेटा है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। यहाँ पे एक्चुअली गेट मूवी सर्च डाटा में ये लिस्ट नहीं है। ये जो हमें एक डेटा क्लास वहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, एक डेटा, इस पे हमारा ये लिस्ट में है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा। यहाँ मूवी रिस्पॉन्स होगा और यहाँ पे मूवी रिस्पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा डिटेल्स रिस्पॉन्स, राइट। तो मूवी डिटेल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक था मेरा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एरर चला गया और रिसोर्स में हमें सर्च पास करना है डेटा। देख लेता हूँ कि रिसोर्स डॉट टोटल रिजल्ट, या फिर हम सर्च का साइज से भी कर सकते हैं। तो नल एल्स पोजीशन +1, ठीक है। एरर चला गया, हमें स्ट्रिंग नहीं पास करना है, बस एरर पास करना है। सो ये हमारा पेजिंग सोर्स रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट हम रिपोजिटरी बनाएंगे। तो रिपोजिटरी के लिए हम एक पैकेज बना लेते हैं रिपो करके, ठीक है। और इस रिपो में हमें रिपो पैकेज में हमें क्लास बनाना है मूवीज़ रिपो करके। और इस क्लास में हमें ज़रूरत पड़ेगा एक ऑब्वियस सी बात है, हमें API का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे API मूवी सर्विस एंड हमें इसे इंजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डैगर हिल्ट इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। एंड देन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग फन गेट मूवीज़ सर्च एंड यहाँ पे जो हमें रिटर्न करने वाला है ये हमें रिटर्न करेगा पेजिंग डेटा। ओके, नो सॉरी नॉट पेजिंग डेटा। ये हमें पेजर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। एंड पेजर में एक्चुअली ये होगा ये कि जब हम व्यू मॉडल से रिपो को यूज़ करके जब हम सर्च डाटा को फेच करेंगे तो हमारा ये जो पेजर है, इस पेजर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक हम पेजर में यहाँ पे पेजिंग कॉन्फ़िगरेशन और इस पेजिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम पेज साइज़ देंगे। पेज साइज़ मतलब हमारा जो पेज में है कितने डेटा, एक लिस्ट में कितने डेटा आने वाला है, ठीक है। तो हम 10 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा पेजिंग सोर्स फैक्ट्री है, ठीक है, पेजिंग सोर्स फैक्ट्री, ये पेजिंग सोर्स फैक्ट्री में हमारा जो हमने पेजिंग सोर्स बनाया है यहाँ पे पेजिंग सोर्स, ये हमारा यूज़ करेगा ऑब्वियसली। सो मूवी पेजिंग सोर्स और हम API सर्विस को यहाँ पे पास कर देंगे। और हमें क्वेरी भी चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग, ओके। सो हम यहाँ पर क्वेरी पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेजर बन गया, हमें रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा मूवीज़ रेपो हो गया। और हमें व्यू मॉडल इसका बनाना है। तो फटाफट से हम इसका व्यू मॉडल बना लेते हैं। व्यू मॉडल बनाने के लिए हमें एक प्रेजेंटेशन पैकेज बना लेता हूँ, प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन में हम एक पैकेज बनाएंगे व्यू मॉडल। एंड इस व्यू मॉडल में हम सबसे पहले रखेंगे अपना
बनाएंगे एक व्यू मॉडल का, मूवीज़ व्यू मॉडल, ठीक है, मूवीज़ व्यू मॉडल, सॉरी व्यू मॉडल। सिंस ये एक व्यू मॉडल है तो यहाँ पे हम एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से, हिल्ट व्यू मॉडल, ओके। एंड यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे हम अपने रिपोजिटरी को एज ए कंस्ट्रक्टर, वेल रिपो मूवीज़ रिपो। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना इसको एक्सटेंड करेंगे एज अ व्यू मॉडल, ओके। फ़्लो यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो पेजिंग सोर्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़्लो भी देता है और लाइव डाटा भी देता है, ठीक है। तो पेजर हमारा यहाँ पे रिटर्न करता है, या तो ये लाइव डाटा रिटर्न करेगा या तो फ़्लो रिटर्न करेगा। तो अभी के लिए हम फ़िलहाल लाइव डाटा देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसको फ़्लो में कैसे यूज़। तो इस व्यू मॉडल में हमें सबसे पहले हम UI स्टेट बाद में बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा डेटा UI पे आ रहा है कि नहीं। उसके लिए हम फटाफट से एक फंक्शन बना लेते हैं, इसमें गेट या फिर फेच मूवीज़ सर्च डेटा, ठीक है। और ये रिटर्न कर देगा हमें रिपो गेट मूवी सर्च डेटा, और क्वेरी हम इसमें पास कर लेंगे, जो क्वेरी हमारा UI से पास जो होगा, ठीक है, क्वेरी। और इसको कैश इन कर लेंगे व्यू मॉडल स्कोप में, ठीक है, सॉरी व्यू मॉडल स्कोप, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉल करेंगे मेन एक्टिविटी पे। तो इसको हम यहाँ पर हम प्राइवेट वैल माई व्यू मॉडल, हमारा जो व्यू मॉडल है वो मूवीज़ व्यू मॉडल है, इसको इनिशलाइज कर लेता हूँ व्यू मॉडल से, ठीक है। और मैं इस व्यू मॉडल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं व्यू मॉडल डॉट जो हमारा फेच डेटा है इसको क्वेरी पास करूँगा। फ़िलहाल मैं हार्ड कोडेड क्वेरी पास कर देता हूँ एवेंजर, ठीक है। ऑब्ज़र्व करूँगा व्यू लाइफ साइकिल, सॉरी दिस एक्टिविटी है तो दिस, एंड यहाँ से हमारा डेटा मिल जाएगा। आई थिंक ये हमें पेजिंग डेटा ही देगा, तो देख लेते हैं नल आता है या नहीं। हम यहाँ पर इट देखेंगे, अगर नल नहीं आएगा तो हमारा काम कर रहा है, अगर नल आएगा तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेजिंग डेटा को हम जब एडेप्टर में सेट करेंगे तो हमें ये दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं। तो जस्ट रन इट एंड एज यू कैन सी हियर हमारे पास लॉग में सी डेटा इज़ कमिंग इन पेजिंग, ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमें दिखेगा नहीं, तो ये हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम एडेप्टर में सेट करेंगे तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा करेक्टली आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है कि हम सब UI इसका जल्दी से जल्दी इसका UI हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा देर पॉज करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं UI डिज़ाइन करने बैठ गया तो, ठीक है। सो हमारा UI कुछ ऐसा दिखने वाला है। मैंने प्रोग्रेस बार को अभी कमेंट कर रखा है क्योंकि मैंने इसको बाद में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो हमारा UI कुछ सिंपल सा ऐसा दिखेगा, सर्च व्यू है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मैंने डिटेल से स्क्रीन में बनाया है, वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। जहाँ पर इमेज शो करेंगे, टाइटल, ईयर और बाकी तो बहुत सारे डिटेल्स हैं, हम वो अभी नहीं शो कर रहे हैं, हम बस सिंपल डिटेल्स शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे तो मैक्सिमम लाइन लिख सकते हैं, मैक्सिमम लाइन 3 लाइन सी या फिर 5 लाइन सी शो होगा, ठीक है। और एलिप्स साइज़ हम डाल सकते हैं एंड में, ठीक है। फिलहाल मार्क्यू नहीं कराना है तो मार्क्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जल्दी से बना लेते हैं एडेप्टर क्लास, एक एडेप्टर बनाएंगे, मूवीज़ एडेप्टर करके है, ठीक है। इसमें हम एक व्यू मॉडल बनाएंगे। तो हमारा जो व्यू मॉडल है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, हमारा व्यू मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हम टाइटल टाइप हो गया और ईयर हो गया और पोस्टर को शो कर रहे हैं, ठीक है। टाइप हमारा यहाँ पर एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया,
ऑल दिस थिंग्स, सॉरी एक्टर बोल रहा हूँ, टाइप एक्शन मूवी है या फिर ड्रामा है एंड ऑल, तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे टाइप में, ठीक है। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारा एडेप्टर में होगा, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि हमें एडेप्टर क्लास को एक्सटेंड कराना है, ठीक है। एक्सटेंड कराना है बाय पेजिंग डेटा। तो अगर हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ये हमारा जो हमारा पेजिंग डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, तो वो हमें यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हमें मूवीज़ एडिटर को एज अ पेजिंग डेटा एक्सटेंड कराना है। यहाँ पे पेजिंग डेटा एडेप्टर, ठीक है, जो जिसमें हमें दो टाइप होगा, एक होगा, सॉरी दो टाइप नहीं, एक टाइप होगा, एक व्यू होल्डर होगा। टाइप मीन्स हेयर हमारा डेटा, तो हमारा डेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, सर्च, ठीक है। और हमारा जो व्यू होल्डर है वो हमने मूवीज़ पेजिंग व्यू होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमें डिफ्यूटिल पास करना है, ठीक है, एज यू कैन सी हेयर डिफ्यूटिल। तो उसके लिए हम डिफ्यूटिल बना लेते हैं। तो हमारा जो डिफ्यूटिल है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आइटम सेम के लिए हम आईडी पास करेंगे और कंटेंट सेम के लिए सिर्फ आइटम पास करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफ्यूटिल। डिफ्यूटिल कुछ नहीं करता, ये जब ऑब्जेक्ट जब रिफ्रेश होता है हमारे साइकिल में जब ऑब्जेक्ट रिफ्रेश होगा तो वो एक सिंगल आइटम को ही रिफ्रेश करेगा, ना कि पूरे स्क्रीन को, ठीक है, ना कि पूरे आइटम को। हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें इंस्टेंस पास करना है व्यू होल्डर का, तो व्यू होल्डर का इंस्टेंस पास कर देंगे। और हम बाइंड व्यू होल्डर में हम इसको बाइंड कर लेंगे डेटा को, ठीक है। तो हमने बाइंड कर लिया, इनर की ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, डिफ में पास करना है कॉल बैक, जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अभी हम देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे पास करना है। तो हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर एडेप्टर को डिफ़ाइन कर लेंगे। वेल डिक्लेयर कर एडेप्टर मूवीज़ एडेप्टर, ठीक है, सॉरी इनिशियलाइज मूवी एडेप्टर। एंड इस एडेप्टर को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे बाय यूजिंग लाइफ साइकिल एंड पेजिंग डेटा 8, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। अभी हम सर्च करके सॉरी रन करके देखते हैं। एज यू कैन सी हमारा डेटा नहीं आया है। हमारा डेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर को अटैच ही नहीं किया, ठीक है। अब हमारा डेटा आएगा। सो एज यू कैन सी ऐप रन हो गया है और आई एम वेटिंग फॉर द डेटा। स्टिल आई थिंक डेटा इज़ नॉट कमिंग हेयर। मैंने क्वेरी तो पास किया एवेंजर, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो यहाँ पे। ये नेटवर्क कॉल है तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू है। हमारा बेस यूआरएल चेक कर लेता हूँ, बेस यूआरएल भी करेक्ट है हमारा। मे बी सम error we are getting internal error, so that for that we can check it by adding log here. If something happened here then we will get an idea like what is happening inside the code, because it is internal error, that's why the data is not coming here. Okay, so we can check by add a log here. यहाँ पे एक log ऐड कर लेता हूँ, मैसेज, ठीक है, टैग। अब इसको रन करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इंटरनल एरर आ रहा होगा। ओके, वी आर गेटिंग अनेबल टू क्रिएट अ कॉल एडेप्टर फॉर द क्लास मूवी रिस्पॉन्स फॉर मेथड API सर्विस ऑफ गेट। अच्छा ओके, हमारा API सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, इस वाले मेथड में, क्योंकि हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं। ओके, मूवी API सर्विस इज क्रिएटेड हेयर, दिस इज कनेक्टेड टू app module and then repository. Okay, then paging source. Acha, this is happening in a suspended function, right? It's in background, and we didn't add suspend function here. Suspend keyword we should add. Okay,
then only it will work, otherwise it will throw an error. This is a network request, right? So network request should be handled in the background thread. So for the background thread, the function should be a suspended function, and if we are calling from a suspended function, then our other function should be a suspended function. Okay, so run it. I hope now the error should be resolved. Yeah, error is not coming. Yeah, data is coming here perfectly, as you can see, right? The pagination is also working. Okay, so where did I left in main activity? Yeah, we were appending a constant data, right? अब क्या करेंगे हम लोग, एक UI स्टेट बना लेंगे, ठीक है? या कोई डेटा देता है यहाँ से, हम एक UI स्टेट बनाएंगे पहले। और UI स्टेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें लोडिंग शो करना है। यहाँ पे लोडिंग के साथ हमें एरर आता है, वो हमें शो करना है, तो वो सब चीज़ों को हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक UI स्टेट बना लेते हैं। तो हम वो प्रेजेंटेशन पैकेज में ही बनाएंगे UI स्टेट करके, UI स्टेट मूवी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सॉरी, ये हमारा एक सील्ड इंटरफेस होगा, ठीक है? जो कि सील्ड इंटरफेस इसलिए क्योंकि ये हमारा डेटा होल्ड करके रखेगा। या तो हम चाहते हैं कि हमारा एरर मैसेज होल्ड करे या हमारा सक्सेस डेटा होल्ड करे, तो वो हमें होल्ड करके रखेगा और हमें UI पे इसको शो कराने में हेल्प करेगा। तो लोडिंग UI स्टेट लोड मूवी एंड देन डेटा क्लास, हम एरर को शो कराएंगे यहाँ पे। वेल मैसेज स्ट्रिंग, ठीक है? UI स्टेट मूवी एंड देन डेटा क्लास हमारा सक्सेस जो हो जाएगा सर्च डेटा, ठीक है? पेजिंग डेटा सर्च। ओके, ये हमारा UI स्टेट रिटर्न कर देगा। ये इसलिए क्योंकि हमारा ये जो हम रिटर्न कर रहा है हमें पेजिंग से, जो डेटा हमें रिटर्न हो रहा है यहाँ पे व्यू मॉडल में, वो हमारा टाइप इसका पेजिंग डेटा पेजिंग डेटा एज ए टाइप सर्च है, राइट? इसलिए हमने सक्सेस में ये लिखा है, ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट है व्यू मॉडल में इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्टेट डिफ़ाइन कर लेते हैं, स्टेट इनिशलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्राइवेट वेल UI स्टेट म्यूटेबल स्टेट म्यूटेबल लाइव डेटा UI स्टेट मूवी, और डिफ़ॉल्ट हम इसको लोडिंग रखेंगे। ओके, वेल UI स्टेट, ठीक है? देन प्राइवेट वेल, हम यहाँ पे एक मूवीज़ डिटेल्स तो अभी हम नहीं बना रहे हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो सर्च डेटा है वो परफेक्टली आ रहा है कि नहीं। तो हम जो हमारे फेच मूवी सर्च डेटा है इसको हम कुछ मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली अभी हम लोडिंग शो नहीं कर रहे, तो हम लोडिंग शो करने के लिए इसको यहाँ से अभी हटाते हैं, ठीक है? और यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होगा अभी, तो इसको क्वेरी भी यहाँ से हटेगा, ठीक है? तो अभी करना ये है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक व्यू मॉडल स्कोप लिखेंगे लॉन्च, और यहाँ पे एक UI स्टेट पोस्ट वैल्यू UI स्टेट मूवी डॉट लोडिंग, ठीक है? और हम यहाँ पर रन कैच लगाएंगे, यहाँ पे रन कैच, और यहाँ पे एक होगा हमारा ऑन फेलियर, ठीक है? सक्सेस को हम इसी में मैनेज कर लेंगे, हम चाहेंगे तो सक्सेस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, बट हम उसको यहीं पे मैनेज कर लेंगे। तो हम रिपो और गेट
मूवी सर्च डेटा, और हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं क्वेरी को प्राइवेट where my query string, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा कि मैं इस क्वेरी को अपडेट कहाँ से करूँगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ये हमारा व्यू मॉडल स्कोप है, तो हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे विथ कॉन्टेक्स्ट dispatcher.io, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम UI state dot post value UI state movie success, और इस सक्सेस में हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो ये पास नहीं होने का रीज़न है कि लाइव डाटा पेजिंग डाटा सर्च चाहिए इसे। हम एक काम करते हैं, सिंस हम इसको UI स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लो यूज़ कर लेते हैं। वो ज़्यादा हमें वो ज़्यादा बेटर होता है और इसको बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ, लाइव डाटा को फ्लो से रिप्लेस कर देता हूँ। तो फ्लो यूज़ करने के लिए हमें फ्लो एक्चुअली बेसिकली फ़्लो क्या होता है और लाइव डाटा क्या होता है। फ़्लो में हमें कलेक्ट करना होता है, ठीक है, डाटा को, जो डाटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसे कलेक्ट करना होता है, ठीक है। और लाइव डाटा में क्या होता है कि हमारा एक हमें ऑब्ज़र्व करना होता है डेटा को, ठीक है। तो वो एक ही बार ऑब्ज़र्व कर सकते हैं डेटा को, दोबारा ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें बार बार उसको करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट होता है, हमें उसको हर जगह नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़्लो ज़्यादा सेट करेगा, क्योंकि फ़्लो में डेटा क्या होगा कि हमें यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च करने के बाद हमें डेटा चाहिए ना, तो फ़्लो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि डेटा हमेशा फ़्लो होते रहना चाहिए। और जब हम सर्च करेंगे तो सर्च करने पर जो क्वेरी मैच करेगा फ़्लो डाटा से वो हमारे शो हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। बट लाइव डाटा का यूज़ करेंगे तो वो एक ही बार हमारा चलेगा, और जब हम सर्च करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जब हम सर्च करेंगे तो हमें फिर से ऑब्ज़र्व कराना पड़ेगा, तो वो बेटर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बट फ़्लो में क्या होगा कि डेटा हमें फ़्लो होता रहेगा, और जब हम सर्च करेंगे तो हमें बस कलेक्ट करना है वहाँ पे, और डेटा हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिपो को यूज़ करेंगे और गेट मूवी सर्च लिखेंगे और मैं माई क्वेरी डालेंगे और कलेक्ट करेंगे डेटा को, और UI स्टेट पोस्ट वैल्यू UI स्टेट मूवी सक्सेस, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इसको, ठीक है। ऑन फेलियर होगा तो UI स्टेट पोस्ट वैल्यू UI स्टेट मूवी एरर इट मैसेज, ठीक है। फेलियर पे हम मैसेज दे देंगे एरर आ गया हमारा, ओके। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि ये क्वेरी हमारा कहाँ से आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा एम्प्टी है, तो हम UI से जब हम क्वेरी टाइप करेंगे तो हमें अपडेट कराना है इसको, ठीक है। तो अपडेट क्वेरी, ठीक है। क्वेरी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग होगा और इसको हम अपडेट कराएंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्वेरी हमारा नल या फिर एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा क्वेरी एम्प्टी है तो हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, और अगर हमारा क्वेरी एम्प्टी नहीं है तो ये माई क्वेरी से अटैच हो जाएगा। इसको हम असाइन कर देंगे और फेच कर लेंगे इसको, ठीक है। फेच मूवी सर्च डाटा को हम कॉल कर देंगे। अब इस अपडेट क्वेरी को हम सबसे पहले तो हमारा ये ऑब्जर्वर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम लाइव डाटा अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्लो यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे UI स्टेट को यूज़ करना है। और UI स्टेट को हम फ़िलहाल, ये हमारा लाइव डाटा है, ये लाइव डाटा है, ठीक है। UI स्टेट को हम क्या करेंगे,
ऑब्जर्व करेंगे यूआई स्टेट को, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑनर देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेट है सॉरी, हमारा जो स्टेट है यहाँ पे वो हमारा जो स्टेट है यहाँ पे वो लोडिंग तो नहीं है। मतलब यूआई स्टेट हमारा मूवी अगर लोडिंग है तो हमें प्रोग्रेस शो कराना है। अगर हमारा यूआई स्टेट जो है वो अगर एरर है तो हमें यहाँ पे एरर का यूआई पे शो कराना है। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमारा यूआई स्टेट का सक्सेस आ गया तो हमें सक्सेस शो कराना है। ठीक है, राइट। तो सक्सेस पे हमें एडेप्टर सबमिट डेटा लाइफ साइकिल पास करेंगे और स्टेट से हम डेटा को ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमने इसको कलेक्ट किया था कहाँ पे, व्यू मॉडल में हमने फ्लो से कलेक्ट किया था और जो डेटा हमें मिला था यहाँ पे उसको मैंने सक्सेस में पास कर दिया। तो सिंपली हम उस डेटा को यहाँ से कलेक्ट कर लें, यहाँ से लेकर इसमें अडेप्टर में पास कर लेंगे। ठीक है, लोडिंग में मैं अनेबल कर देता हूँ प्रोग्रेस बार को। जो हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल करके रखा था, इसको अनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे बाइंडिंग प्रोग्रेस इज़ विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स और इसी को सेम यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम जब क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे तो बाइंडिंग ईटी सर्च में जब क्वेरी हम टाइप करेंगे तो डू ऑन टेक्स्ट चेंज पे, डू आफ्टर टेक्स्ट चेंज पे जब जैसे ही टेक्स्ट चेंज होता रहेगा हम भी मॉडल की हेल्प से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, इट टू स्ट्रिंग, राइट। तो जब हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे यहाँ पे तो टेक्स्ट चेंज होगा क्वेरी में, तो क्वेरी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और क्वेरी जब यहाँ पर असाइन होगा तो हमने इसको कॉल किया, ये कॉल हो जाने के बाद हमें ये जो डेटा है यहाँ पर जो हमें डेटा कलेक्ट किया है कलेक्टर से, तो वो डेटा हमें यूआई स्टेट में असाइन होगा। और ये यूआई स्टेट हमें यहाँ पे, यूआई स्टेट हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा है तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर सक्सेस है तो सक्सेस में चला जाएगा, एरर है तो, और लोडिंग है तो लोडिंग शो होगा, सक्सेस है तो सक्सेस में जाएगा, नहीं तो एरर शो कर देगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें लोड स्टेट को कैसे शो करना है। मतलब जब हमारा स्क्रीन ओपन होगा तो हम सिंस पेजर यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम पेजर यूज़ करेंगे तो हम एडेप्टर का लोड स्टेट फ्लो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एडेप्टर है यहाँ पे हमने जो एडेप्टर बनाया है इसमें पेजिंग एडेप्टर डेटा एडेप्टर है, तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लोड स्टेट फ्लो ऑलरेडी होता है इसमें। ठीक है, इस पर हमें पता होता है कि कब डेटा लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके पास ऑलरेडी वो कॉल बैक होता है। तो उस कॉल बैक को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा रिफ्रेशिंग मोड में है तो हम लोडिंग शो कर देंगे, नहीं तो हम डेटा वहाँ पे शो होगा या फिर एम्प्टी शो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्राइवेट फंक्शन ऑब्जर्व लोड स्टेट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाइफ साइकिल स्कोप और लॉन्च यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एडेप्टर लोड स्टेट फ्लो और इसको कलेक्ट करेंगे एज ए लेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें लोड स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक लोड स्टेट हमारा ये फ्लो है और फ्लो को हम कलेक्ट करेंगे एज ए लेटेस्ट, तो ये हमें लेटेस्ट जो भी डेटा है वो देगा। और यहाँ पे हम लोड स्टेट से ये पता करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रिफ्रेश में है। अगर है लोड स्टेट लोडिंग, अगर ये रिफ्रेशिंग है, सॉरी हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल बनाएंगे, लोकल वेरिएबल का नाम रखेंगे इज़ रिफ्रेशिंग। और अगर ये रिफ्रेशिंग है तो बाइंडिंग जो हमारा प्रोग्रेस विजिबिलिटी है, अगर ये हमारा रिफ्रेशिंग कर रहा है तो ये विजिबल रहेगा। ठीक है, और बाइंडिंग हमारा रिसाइकलर व्यू इज़ विजिबल जो है वो इज़ रिफ्रेशिंग फॉल्स, मतलब रिफ्रेश नहीं कर रहा है तब। और या फिर एडेप्टर का जो काउंट है आइटम काउंट वो अगर इक्वल टू 0 से बड़ा है तो ये विजिबल रहेगा।
ठीक है। हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, स्टेटस, ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू, ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, और इस पे हम लोग एक स्टेटस ऐड कर सकते हैं। इसका हम कॉन्स्ट्रेंट टॉप इसको हम पेरेंट कर देते हैं, और कॉन्स्ट्रेंट बॉटम भी पेरेंट कर देते हैं, एंड कॉन्स्ट्रेंट स्टार्ट पेरेंट, एंड कॉन्स्टेंट एंड पेरेंट। ठीक है। हम इसको टॉप नहीं रखते हैं, हम इसको बॉटम में शो करते हैं। ठीक है, विथ सम पैडिंग, मार्जिन बॉटम 30 dp। ठीक है, और इसमें हम इसका आईडी दे देते हैं टेक्स्ट व्यू स्टेटस, और इस पे हम टेक्स्ट जस्ट एज अ डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि डेटा इज़ वेटिंग, और नो डेटा फाउंड। ओके। इसका टेक्स्ट साइज़ हम दे देते हैं 12 SSP, ज़्यादा छोटा हो गया, 14 SSP। ठीक है, ये ठीक है। अभी हम इसको विजिबिलिटी गॉन रखते हैं, स्टार्टिंग का विजिबिलिटी इसको गॉन रखते हैं। अब प्रोग्रेस का भी स्टार्टिंग विजिबिलिटी हम इसको गॉन रखते हैं, या फिर प्रोग्रेस को हम शो कर देते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमें ऑब्वियस सी बात है कि प्रोग्रेस ही शो होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हमारा स्टेटस कब शो होना चाहिए और कब नहीं शो होना चाहिए। तो बाइंडिंग टेक्स्ट व्यू स्टेटस इज़ विजिबल, ये कब शो होगा? जब रिफ्रेश नहीं हो रहा है, राइट, इज़ रिफ्रेशिंग नहीं हो रहा है, तब हमारा ये शो होगा। और एडेप्टर का आइटम काउंट लेस देन 0 है, तब ये शो होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। टेक्स्ट व्यू स्टेटस यहाँ पे हो गया। और इस टेक्स्ट व्यू स्टेटस को हम अगर चाहें तो और भी कुछ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हम इतना भी टेस्ट करना चाहेंगे, उसके बेसिस पे हम आगे कोड करेंगे। ठीक है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व हम एडेप्टर को सेट करने के बाद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एरर आ रहा है यहाँ पे समथिंग। ओके, एक्चुअली मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये डेटा लोड हो रहा है, और ये लोड हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ भी हमने सर्च किया नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने ट्रू करके रखा हुआ है प्रोग्रेस को। अगर हम चाहें तो इसको फॉल्स कर सकते हैं, विजिबिलिटी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कुछ भी लोड तो कर नहीं रहे हैं, कोई डेटा हमारे स्टार्टिंग में आ नहीं रहा है, तो हम इसको फॉल्स ही रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि कुछ लोड हो रहा है। ठीक है, और स्टेटस को हम यहाँ पर गॉन से हटा देते हैं, नो डेटा फाउंड, तो ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कि प्लीज़ सर्च समथिंग। अभी भी लोडिंग शो हो रहा है यहाँ पे, हम कुछ सर्च करके देखते हैं। एवेंजर, जैसा कि आप देख सकते हैं लोडिंग हमारा गायब हो गया है, बट डेटा अभी भी नहीं आया। यहाँ पे डेटा हमारा नहीं आया है, तो मे बी कुछ मिस्टेक है यहाँ पे शायद। हमें देखना पड़ेगा। सक्सेस तो सही हुआ है, इसलिए यहाँ प्रोग्रेस चला गया है। और पेजिंग डेटा हमने, ठीक है, लोड स्टेट, फेच मूवी। अच्छा, हमने इसको कॉल ही नहीं किया स्टार्टिंग में, पहली बार हमें इसको कॉल करना चाहिए। हमें यहाँ पे माई व्यू मॉडल फेच ये डेटा हमें कॉल करना चाहिए, और इसके बाद हम ये लिखेंगे, हमें स्टेट बाद में लिखना है, ऑब्ज़र्व करना है स्टेट को। अभी हम चेक करते हैं एक बार। अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, यस, वर्किंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लोडिंग में शो करता है। जैसे ही हम इरेज करते हैं लोडिंग शो हो रहा है, राइट।
ये वर्क कर रहा है। अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं समथिंग इरेलीवेंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये सारे केस को हम हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। हम यहाँ पर सर्च करते हैं लाइक सुपरमैन, सुपर, तो ये आया डेटा, राइट, आ रहा है डेटा। यहाँ पे पेजिनेशन भी काम कर रहा है, ऐसा कर दे सकते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल हो रहा है, जितना डेटा आना चाहिए उतना डेटा आ गया। फिर अगर मैं सर्च करता हूँ स्पाइडर, तो स्पाइडर का इतना डेटा आया और ये पेजिनेशन काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल। ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम ये देखते हैं यहाँ पे कि अभी तो हमने जैसे कि एवेंजर सर्च किया तो हमारा डेटा आ जा रहा है एवेंजर, राइट। हमने एवेंजर सर्च किया तो हमें डेटा मिल जा रहा है, राइट। या फिर हमने सुपरमैन सर्च किया तो हमें डेटा मिल जा रहा है। लेकिन एक ऐसा केस वो भी हो सकता है कि अब मैंने कुछ रैंडम सर्च किया बट यहाँ पर ये वो ही प्रीवियस डेटा शो कर रहा है, कुछ यहाँ पर शो नहीं किया कि नो डेटा फाउंड या फिर नथिंग। ये तो ये वाला केस भी हमें हैंडल करना है कि हमें डेटा नहीं मिला सर्वर से। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे एवेंजर लिखा हुआ है क्वेरी में, राइट। हम एवेंजर नहीं लिख करके 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ तो हमें रिस्पॉन्स में फॉल्स आ रहा है, तो हमें ये केस भी हैंडल करना है, राइट। तो एक्चुअली इंटरव्यूअर ने ये हमसे पूछा था कि अगर हम रैंडम कुछ यहाँ पर क्वेरी में लिखते हैं तो उसकी चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। वो केस मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था कोड में, तो उन्होंने वो एक्सपेक्ट किया था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था उसको करने के लिए, तो बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें API सर्विस में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूवी रिस्पॉन्स ले रहे हैं, राइट। तो मूवी रिस्पॉन्स हमारे पास डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हमें दे रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पर एवेंजर सर्च कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट ये डेटा ऑब्जेक्ट दे रहा है, पूरा डेटा, ठीक है। और इस डेटा में हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स ट्रू भी दे रहा है, तो हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि हम या तो हम यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स चेक करें, मतलब ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, या तो हम ट्रू और फॉल्स चेक करें, या फिर हमारे पास और भी सारे अलग मेथड्स हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा कि इस रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए कि अगर हमारा फॉल्स आता है तो हमारे पास ये डेटा वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में एक चीज़ है हमारे पास ट्रू है, राइट। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पेजिंग सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, राइट, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये हमारा ट्रू है तो हम इसको पास करेंगे यहाँ पे, और एल्स में हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो पेज है ये अगर ट्रू है तो हम डेटा पास कर दे रहे हैं, राइट। अगर हमारा फॉल्स आ जाता है, समथिंग लाइक हमारा रिस्पॉन्स फॉल्स आता है, उस टाइम हमारे पास डेटा नहीं रहता है, राइट। तो उसमें हम एम्प्टी पास कर देंगे यहाँ पे। ये लिस्ट हमारा एम्प्टी चला जाएगा। पोजीशन हमारा प्रीवियस कुछ भी नहीं है और नेक्स्ट हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा फॉर एम्प्टी डेटा, ठीक है। और ये सक्सेस डेटा, ओके। और ये हो गया एरर। तो एरर तो फिलहाल हम हैंडल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मतलब कैच में हैंडल कर रहे हैं, बट हमारे UI पे एरर शो होगा, वो UI स्टेट के ज़रिए शो होगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी आया और इस एम्प्टी को हम हैंडल करेंगे UI स्टेट के हेल्प से। तो अभी क्या हम रिफ्रेशिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हम एक ये लोडिंग शो करने के लिए, अगर हमारा एक केस आता है जिसमें हमारा होगा कि या तो हमारा लोड नहीं हो रहा है, लोड भी नहीं हो रहा है, डेटा भी नहीं एम्प्टी है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हम एक बुलेन बनाएंगे यहाँ पे, वैल इज़ एम्प्टी, ठीक है। वैल इज़ एम्प्टी, यहाँ पर लोड स्टेट होगा हमारा रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश में हमारा लोड स्टेट नॉट लोडिंग, ठीक है। या तो ये नॉट लोडिंग है
अगर लोडिंग नहीं हो रहा है तो फिर और क्या हो सकता है, लोड स्टेट डॉट अपेंड अपेंड डॉट एंड ऑफ पेज रिच्ड। ठीक है, हम अपेंड कर रहे हैं, लोड स्टेट में अपेंड करके एक स्टेट आता है अपेंड एंड ऑफ पेजिनेशन रिच्ड, मतलब या तो हम सबसे लास्ट पेज पे रीच कर चुके हैं, वो केस हो गया, या फिर हो जाएगा हमारा एडेप्टर आइटम काउंट जो है हमारा 0 है, तो इस केस में हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लास्ट पेजिनेशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है, या फिर हमारा रिफ्रेश लोडिंग नहीं हो रहा है, या फिर हमारा एडेप्टर का काउंट 0 है। ठीक है, उस सारे केस में हमारा एम्प्टी आता है। ठीक है, तो अगर ये एम्प्टी है, तो अगर एम्प्टी है तो हमारा ये जो हमारा हमने यहाँ पर रिफ्रेशिंग यहाँ पर लगा कर रखा है, इसको ये हटाकर हम एम्प्टी लिखेंगे। अगर हमारा एम्प्टी है तो टेक्स्ट व्यू स्टेटस शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बाइंडिंग टेक्स्ट व्यू स्टेटस को लिख देंगे टेक्स्ट नो डेटा फाउंड। ओके, नो डेटा फाउंड। ठीक है, और हमारा प्रोग्रेस बार तो अगर रिफ़्रेश कर रहा है तो हो जाएगा, हम इसको हम यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम एम्प्टी के बेसिस पे अगर हम एम्प्टी लिख रहे हैं तो हमारा दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एम्प्टी को यूज़ कर लेंगे। अगर हमारा एम्प्टी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रेस बार नहीं शो होना चाहिए, अदरवाइज़ शो होना चाहिए। ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ पर लोड रिफ़्रेश का यूज़ करें। ठीक है, इज़ लोड स्टेट डॉट लोडिंग, बट इसके लिए हम एम्प्टी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमें इस दो कंडीशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर नॉट इज़ एम्प्टी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स था यहाँ पे बेसिक ये था कि हम सबसे पहले तो रिस्पांस चेक कर रहे हैं। यहाँ पर रिस्पांस अगर ट्रू आ रहा है मतलब हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम यहाँ पर लोड पेज में डेटा को पास कर दे रहे हैं, और अगर डेटा नहीं आ रहा है, रिस्पांस हमारा फॉल्स है, तो हम एम्प्टी पास कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को, और यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोड स्टेट को फ्लो की हेल्प से कि हमारा जो लोड स्टेट अगर हमारा लोडिंग नहीं है और हमारा एंड ऑफ पेज पे पहुंच चुके हैं और हमारा एडेप्टर काउंट भी हमारा 0 है, एडेप्टर आइटम काउंट, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है एम्प्टी होगा वो। और अगर वो एम्प्टी है तो हमारा यहाँ पे स्टेटस नॉट फाउंड हमारा शो कर देगा। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं एंड्रॉयड DROID। ठीक है, और अगर हमारा उसके बाद हमारा प्रोग्रेस तब शो होगा जब हमारा रिफ़्रेश हो रहा है लोडिंग के केस में, और रिसाइकलर व्यू मूवीज़ तब शो होगा जब हमारा एम्प्टी नहीं है। ओके, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो बेसिकली करेगा क्या कि अगर हम अगर हम कोई ऐसा क्वेरी सर्च करते हैं जिसमें हमारा कोई डेटा नहीं अवेलेबल है तो हमारा नो डेटा फाउंड शो कर देगा। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं एवेंजर, डेटा शो कर दिया, और हम कुछ अजीब सा सर्च करते हैं तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड लिख रहा है। तो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं ना, इसको नीचे से हटा के हम सेंटर में कर देते हैं, कॉन्स्टेंट टॉप टू टॉप सेंटर, सॉरी पेरेंट, और मार्जिन बॉटम हटा देते हैं या फिर रख ही देते हैं अराउंड 100। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कुछ हम एवेंजर अभी हट गया है, अजीब सर्च करते हैं, अजीब सा कोई डेटा सर्च करते हैं तो नो डेटा फाउंड आ गया, राइट। फिर हम अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो नो डेटा फाउंड आ गया। ठीक है, ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पर सुपर लिखते हैं SUP, अभी तक डेटा नहीं आया, अब आ गया डेटा, राइट। ये काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। देख लेते हैं कि हमारा नीचे पेजिनेशन जब होगा तब ये लोडिंग शो करेगा, जब तक ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो उसके केस के लिए हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आइटम लोडिंग स्टेट करके है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो उसको ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, आइटम लोडिंग। ठीक है, हमारा प्रोग्रेस होगा और हमारा उसमें टेक्स्ट व्यू एरर होगा। हम इसको
टूल्स विजिबिलिटी करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसा दिखेगा ये। विजिबिलिटी, विजिबल, 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 तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले तो ये आइटम लोड स्टेट है और ये रिसाइकलर व्यू में हमारा शो होने वाला है। ये हमारा आइटम व्यू रिसाइकलर व्यू में शो होगा, तो इसके बॉटम में शो होगा। तो ये हमारे रिसाइकलर व्यू आइटम के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम एक एडेप्टर बना लेते हैं जो कि हमारा नाम होगा लोडिंग स्टेट एडेप्टर, ठीक है। और इस एडेप्टर में सबसे पहले सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ का ये होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे, बट एक्सटेंड करने से पहले हम इसका व्यू मॉडल इसका बना लेते हैं, जो कि कुछ इस ऐसा दिखने वाला है। इनर क्लास, इसको नाम देते हैं मूवी लोडिंग व्यू होल्डर, मूवी लोडिंग व्यू होल्डर, वेल बाइंडिंग, आइटम लोडिंग स्टेट बाइंडिंग, ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और बाइंडिंग रूट, ठीक है। और इसको हम फंक्शन बाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमें बाइंड में लोड स्टेट मिलेगा, ओके, लोड स्टेट। तो लोड स्टेट को अभी हमने तो कुछ देर पहले देखा था लोड स्टेट कैसे काम करता है। लोड स्टेट में ऑलरेडी हमारा लोडिंग, एरर, नॉट लोडिंग, ये सब वैल्यूज़ मिलते रहते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे यूज़ करने वाले हैं। लोड स्टेट अगर हमारा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमारा बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार इज़ विजिबल होगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है टेक्स्ट व्यू एरर, वो कब विजिबल होगा, जब हमारा लोडिंग एरर होगा। और लोडिंग एरर हमारा रिट्राई बटन के लिए भी होगा, ठीक है। तो वो भी तब विजिबल होगा जब हमारा लोडिंग एरर हो, तब हमारा बटन रिट्राई विजिबल होगा, ओके। अब हम एक और केस लगा लेते हैं टेक्स्ट के लिए कि क्या एरर मैसेज शो करेंगे। तो लोड स्टेट हमारा अगर इज़ लोडिंग स्टेट एरर आ जाता है, तो उस केस में हम बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू एरर को टेक्स्ट सेट करेंगे यहाँ पे लोड स्टेट डॉट एरर मैसेज, ठीक है। और अगर हम रिट्राई बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बटन रिट्राई डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, हमारा रिट्राई कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, रिट्राई, ठीक है, यूनिट। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया, रिट्राई, ये कॉल हो जाएगा। और ये मतलब इस कॉल होने पे हमारे जो वर्क होगा, मतलब जब हम रिट्राई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। और ये जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ पे ये हमारा एक जो भी हम उसको कोड प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि हम रिट्राई में जो भी कुछ करना चाहेंगे वो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको एक्सटेंड करना है। और इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें यहाँ पे लोड स्टेट एडेप्टर का यूज़ करना है, जिसमें हम व्यू होल्डर पास करेंगे अपना मूवी लोडिंग व्यू होल्डर को, ठीक है। तो ये बेसिकली लोड स्टेट एडेप्टर है जो कि हमें आइटम प्रोवाइड करता है लोड स्टेट को, ठीक है, जो कि हमारा पेजर व्यू के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। यहाँ पे हमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें व्यू होल्डर को रिटर्न करना है। तो हम इसको मूवीज़ व्यू होल्डर से रिप्लेस कर देते हैं और ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमें होल्डर डॉट बाइंड को लोड स्टेट से पास कर देना है, ठीक है। तो हमें लोड स्टेट मिल रहा है यहाँ पे, और लोड स्टेट को हम यहाँ से पास कर देंगे। तो लोड स्टेट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन के हिसाब से कि जो मैच कर रहा है उसके हिसाब से हम यूआई को अपडेट करेंगे, ठीक है। और ये लोडिंग स्टेट एडेप्टर को हम एज ए फुटर और हेडर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम हेडर नहीं यूज़ करके ओनली फुटर चेक कर रहे हैं। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो अगर डेटा लोड हो रहा है तो वहाँ पे प्रोग्रेस शो होगा, और अगर एनी हाउ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो वहाँ पे रिट्राई शो कर देगा। तो रिट्राई करने पे हम फिर से वो डेटा लोड करने की कोशिश करेगा, ओके। एक्टिविटी हमारा जो है मेन एक्टिविटी, इस पर हम जो एडेप्टर हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करेंगे
विथ लोड स्टेट फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर पास करेंगे, FOOTER फुटर, और फुटर में हम ये अपने पास कर देंगे अपना लोडिंग स्टेट एडेप्टर जो कि हमने बनाया है, लोडिंग स्टेट एडेप्टर। और यहाँ पे रिट्राई कॉल बैक फंक्शन है, तो हम अब कॉल करेंगे और यहाँ पे एडेप्टर डॉट रिट्राई को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा हो जाएगा हमारा फुटर। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन रन हो गया है और हम इसको एक काम करते हैं, वर्क हम ऑफ करके चेक करते हैं कि क्या कैसे ये काम करता है। अगर हम इसमें सर्च करते हैं कि एवेंजर, ठीक है, नेटवर्क ऑन करते हैं और इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ये डाटा आ गया। फुटर आई थिंक काम यस कर रहा है, बट दिख नहीं रहा है, राइट। तो एक्चुअली वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ इनसेट पैडिंग का दिक्कत है। सिस्टम बार ये सब तो ठीक ही लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट डेटा है वो हिडन है हमारा इससे बॉटम नेविगेशन बटन से। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली ये मिस्टेक है, कोडिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। हमें यहाँ पे कांस्टेंट बॉटम ऑटो बॉटम पेरेंट देना पड़ेगा और हाइट 0 dp, तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा कि ये स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये हमारा प्रोग्रेस बार दिखने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्रेस बार दिख रहा है। और अगर मैं इंटरनेट ऑफ कर दूं तो रिट्राई आ गया है ना, आ गया रिट्राई, अनएबल टू रिजॉल्व समथिंग इट्स शोइंग। रिट्राई करने पर ये बार बार फेच करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसको इंटरनेट को ऑन कर दूं और रिट्राई पे क्लिक करूं तो ये काम कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट लोडिंग विथ पेजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो नो डाटा फाउंड आ गया है कि आपको बोलेगा कि आप इसको यूज़ करके दिखाइए एप्लीकेशन को, और उसमें वो इश्यूज़ फाइंड करेगा कि आपने क्या छोड़ दिया है, आपने क्या चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो बारी बारी चेक करेगा। और अगर कोई बग्स आएगा तो उसको नोट कर लेगा कि इसने ऐसा इश्यूज़ फेस किया है एंड ऑल। तो मैंने नहीं किया था यहाँ पे ये नो डाटा फाउंड जैसा चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। एरर हैंडलिंग तो मैंने किया था, बट मैंने एम्प्टी डेटा को नहीं शो कराना हो या फिर एम्प्टी डेटा आ रहा है तो उसको कैसे शो कराना हो, कैसे हैंडल करना हो, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो मैंने बता दिया कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लोड स्टेट फ्लो, ओके, और बाय यूजिंग द डेटा हेयर इन द पेजिंग, लाइक हाउ कैन वी पास द एम्प्टी डेटा हेयर, अगर हमारा एम्प्टी डेटा आ रहा है तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि हमारा डिटेल्स स्क्रीन कैसे। डिटेल्स स्क्रीन शो कराना बहुत ही ईजी है, उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम उसमें करेंगे ये कि हमारे पास ऑलरेडी कोड्स APIs एंड ऑल सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक व्यू मॉडल में हमें बस इसका डेटा लिखना है, कैसे डेटा फेच होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमें यहाँ पे एक फेच मूवीज़ डिटेल्स बनाएंगे। ठीक है, व्यू मॉडल में एक हम फेच मूवीज़ डिटेल्स फंक्शन बनाएंगे, और उससे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि म्यूटेबल लाइव डाटा है या नहीं। तो पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फेच मूवी डिटेल्स, और ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक आईडी चाहिए होगा, तो वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे होगा। व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च करेंगे और हम यहाँ पे dispatcher.io लिखेंगे और रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे और यहाँ से गेट
ओके, रिपॉजिटरी में भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारा जो गेट मूवीज़ डिटेल्स है वो फेच करना है हमें, राइट। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो गेट मूवीज़ डिटेल्स है वो फेच हो API सर्विस डॉट गेट मूवी डिटेल्स। और इसमें हमें चाहिए होगा यहाँ पे IMBD की IMBD ID जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसको पास कर देना है IMBD, ठीक है। अभी ये एक हमारा सस्पेंडेड फंक्शन है तो हमें इसको भी एज ए सस्पेंडेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये ठीक है। अभी हम इसको मूवीज़ व्यू मॉडल में यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए होगा नो वैल्यू पास्ट फॉर IMBD ID। तो यहाँ पे IMBD ID एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और IMBD ID को हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये हमें डेटा प्रोवाइड करेगा और इसको हमें UI तक पहुँचाने के लिए एक म्यूटेबल लाइव डाटा डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा मूवी डिटेल्स म्यूटेबल लाइव डाटा मूवी डिटेल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। वेल मूवी डिटेल्स म्यूटेबल मूवी डिटेल्स, ठीक है। और इस मूवी डिटेल्स को हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर डेटा आ रहा है उसको पोस्ट वैल्यू यूज़ करके UI में अपडेट कराएंगे, ओके। इसको हम और अच्छे तरह इस इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि इसको और अच्छे से हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली dispatcher.io हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और मतलब कर सकते हैं बट बेसिकली ये जो हमारा कुछ चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो UI रिलेटेड चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें हमारा बैकग्राउंड थ्रेड API से भी फेच हो रहा है। तो वो दोनों को मैंने मर्ज करके यहाँ पर एक लाइन में कोड लिख दिया है जो कि रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने पूछा मुझसे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इसको मतलब ये मेन थ्रेड पे भी हमारा UI मेन थ्रेड पे कॉल हो और बैकग्राउंड थ्रेड वाला कोड बैकग्राउंड थ्रेड पे कॉल हो, मतलब जो कि हमारा डेटा फेच हो रहा है वो बैकग्राउंड पे हो और जो UI अपडेट हो रहा हो वो मेन पे हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारा ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड थ्रेड है ना, और ये जो पोस्ट वैल्यू जो हम अपडेट कर रहे हैं UI के लिए ये हमारा मेन थ्रेड पे चलना चाहिए और ये हमारा बैकग्राउंड थ्रेड पे चलना चाहिए। बट हमने पूरा को बैकग्राउंड थ्रेड पे कर दिया है, तो इसको मेन थ्रेड पे इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हम इसको कर लेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। और विथ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर और dispatcher डॉट मेन यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। सिंपल, ये जो हमारा हो गया बैकग्राउंड थ्रेड पे चला जाएगा और ये जो हमारा हो जाएगा वो मेन थ्रेड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा ना कि हमारा समटाइम्स ना UI फ्रीज़ हो जाता है। हम मतलब UI फ्रीज़ नहीं, UI क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि अगर मेन थ्रेड का काम अगर हम बैकग्राउंड थ्रेड का काम अगर हम UI थ्रेड पे करने लगे तो हमारा ऐप क्रैश होने का चांसेस बढ़ जाता है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉल करेंगे, ओके। हमारा ये व्यू मॉडल का काम ख़त्म हो गया है और इसको हम मूवीज़ डिटेल्स एक एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ पे। जैसे हमारा मेन एक्टिविटी है तो इसको प्रेजेंटेशन में डाल देता हूँ। तो इसी की तरह हम एक नया एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ पे, क्लास मूवीज़ डिटेल्स एक्टिविटी, और ये हमारा एक्सटेंड करेगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को,
और यहाँ पे ऑन क्रिएट सेव बंडल, सॉरी ऑन क्रिएट ठीक है, ऑन क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक प्राइवेट वेल बाइंडिंग बाय लेजी मूवी डिटेल्स एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी मूवी डिटेल्स बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू बाइंडिंग डॉट रूट, ओके। और अगर हमें चाहिए तो हम इसको यहाँ पे इंसेट्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हम इंटेंट को यूज़ करेंगे। पहले एक हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कंपेनियन ऑब्जेक्ट। इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो कि IMBD को कंटेन करेगा, BDID, जो कि हम पास करेंगे अपने मेन एक्टिविटी से। तो इंटेंट को यूज़ करके गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा IMBD टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा IMBD, ठीक है। और हमारा एक व्यू मॉडल भी होगा यहाँ पे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि मेन एक्टिविटी, हमारा जो मेन एक्टिविटी है यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो मेन व्यू मॉडल हो गया, माई व्यू मॉडल हो गया। माई व्यू मॉडल से मैं फेच मूवी डिटेल्स और IMBD ID पास करूँगा और इसको ऑब्ज़र्व करूँगा यहाँ पे। मूवी डिटेल्स ऑब्ज़र्व दिस एंड अपडेट UI अपडेट UI मैं फंक्शन बनाऊँगा, मेंबर फंक्शन, और यहाँ पे मैं UI को अपडेट करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं UI को अपडेट करने के लिए बाइंडिंग डॉट अप्लाई और ग्लाइड का यूज़ करूँगा, ग्लाइड डॉट विथ इमेज व्यू पोस्टर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे UI बना के रखा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैंने ऑलरेडी ये सब बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज व्यू पोस्टर है, यहाँ पे इमेज व्यू पोस्टर को यूज़ कर रहे हैं। लोड मूवी डाटा, मूवी रिस्पॉन्स डॉट पोस्टर इनटू इमेज व्यू पोस्टर, ओके। टेक्स्ट व्यू टाइटल जो हो गया उसका हमारा टेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट टाइटल टाइटल, और जो हमारा टेक्स्ट व्यू जो हमारा ईयर हो जाएगा एंड टेक्स्ट व्यू प्लॉट हो जाएगा। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया हमारा प्लॉट, ठीक है। तो अभी हम जब मेन एक्टिविटी को कॉल करेंगे, हम अपने मूवी डिटेल्स एक्टिविटी को कॉल करेंगे मेन एक्टिविटी से। तो ये जो हमारा एडेप्टर है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जब हम क्लिक करेंगे अपने रूट पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पे कॉल बैक होगा, आइटम कॉल बैक, वेल आइटम कॉल बैक, ठीक है। तो आइटम कॉल बैक यहाँ पे होगा, और ये आइटम कॉल बैक्स के हेल्प से हम एक्टिविटी को कॉल करेंगे अपने। ये कुछ प्रॉब्लम आया यहाँ पे, इनर क्लास यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज ये क्लास इसका ये इनर क्लास का जो वेरिएबल है ये मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा अगर मैं यहाँ पे इनर नहीं लिखता हूँ, तो ठीक है। तो इनर लिखना ज़रूरी है। अगर हम इनर हटा दूँ तो मैं नेस्टेड क्लास का, मतलब ये नेस्टेड क्लास है, तो नेस्टेड क्लास होने की वजह से अगर मैं इनर नहीं लिखूँ तो मैं इसके फंक्शन या फिर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इनर लिखना ज़रूरी है अगर मैं मेंबर फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो। फिर यहाँ पर मूवी एडेप्टर में आ जाते हैं, मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑन आइटम
आइटम मूवीज एडेप्टर, सॉरी नॉट ऑन आइटम, आइटम कॉल बैक। और इस आइटम कॉल बैक में मैं स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट दिस मूवी डिटेल्स एक्टिविटी बट यहाँ पे अभी अगर मैं इसको यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट कर दूँगा तो मेरे पास आईडी कैसे मिलेगा? इफ़ यू हैव एनी आइडिया, लाइक मैंने तो आईडी तो पास ही नहीं किया कॉल बैक में, तो हमें यहाँ पे आईडी पास करना पड़ेगा। इंट सॉरी आईडी स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग IMBD स्ट्रिंग। हम चाहे तो टाइप लिख सकते, सॉरी वेरिएबल का नाम नहीं भी लिख सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास करेंगे अपना सर्च डेटा से आईडी, ओके। ये नल भी हो सकता है, तो उस केस में हम उसको हैंडल कैसे करेंगे? उसको हैंडल करने के लिए हम लेट यूज़ कर लेते हैं और लेट में इट पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आईडी है और आईडी को हम पुट एक्स्ट्रा में लिखेंगे, सॉरी हमारे पास ये इंटेंट है, हम अप्लाई लिखेंगे, पुट एक्स्ट्रा, अप्लाई के अंदर पुट एक्स्ट्रा एंड मूवीज़ डिटेल्स एक्टिविटी में हमारे पास कंप्लेन ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम अपना आईडी पास करेंगे, ओके। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है मूवीज़ डिटेल्स एक्टिविटी को। ये क्रैश कर जाएगा अगर मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करूँगा, ये क्रैश कर जाएगा सिंपली। एवेंजर क्रैश कर गया। अब दोबारा रन करता हूँ तो ये काम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐप रन हो गया और एवेंजर मैं लिखूँगा तो ये एवेंजर का डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है। और इस पर मैं क्लिक, ये अभी भी क्रैश ही कर रहा है, तो मैं एक बार लॉग चेक कर लेता हूँ कि क्यों क्रैश कर रहा है। तो ये नो सच मेथड फाउंड एक्सेप्शन, कौन सा? मूवीज़ व्यू मॉडल, अच्छा मूवीज़ व्यू मॉडल कांट क्रिएट एन इंस्टेंस। अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, किसका? मूवीज़ व्यू मॉडल का इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है इन द मूवीज़ डिटेल्स एक्टिविटी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है हिल्ट व्यू मॉडल। यहाँ पे हमने इंस्टेंस तो बना दिया है क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है डैगर हिल्ट और मैंने इंस्टेंस इसका बना दिया है, बट मैंने हिल्ट को ये नहीं बताया, हिल्ट को पता ही नहीं कि मैं इसका इंस्टेंस बनाना कैसे है, क्योंकि इसको यहाँ पर मैंने एनोटेट ही नहीं किया। अगर मैं इसको एनोटेट ही नहीं करूँगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से तो हिल्ट को पता ही नहीं चलेगा कि इसका इंस्टेंस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हिल्ट को बताना पड़ेगा कि ये भी एक डैगर का ही पार्ट है और यू कैन फाइंड द इंस्टेंस फ्रॉम लाइक डैगर क्लास, जो कि ये ऑलरेडी बन चुका होगा इसके कैश फाइल में, ठीक है। तो अब मैं जब इसको एनोटेट करने के बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये काम कर जाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि अगर हम किसी भी फ्रैगमेंट या फिर किसी भी एक्टिविटी में किसी भी डैगर हिल्ट का इंजेक्ट करते हैं या फिर डैगर हिल्ट को यूज़ करते हैं, डैगर हिल्ट का कोई भी इंस्टेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। एवेंजर, मैंने इसको सर्च किया, इस पर क्लिक किया तो ये शो हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही आसानी से काम भी कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये UI। और अगर यहाँ पे मैं और भी कुछ सर्च करूँ सुपर, तो ये सही से काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। कुछ भी रैंडम डेटा सर्च करूँ तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ये था हमारा बेसिक्स
इंटरव्यू का स्विगी इंटरव्यू का प्रोजेक्ट हमारा, जिसमें हमें मूवीज़ एपीआई को यूज़ करना था और हमें सर्च करना था मूवीज़ को, और सर्च करने के बाद हमें मूवीज़ का लिस्ट शो करना था और हमें देन मूवीज़ डिटेल्स पे जाना था। कोई भी मूवीज़ जो हमें सर्च पे आता है उसको क्लिक करने पर हमें मूवीज़ डिटेल्स पे जाना था। तो ये बेसिक सा चीज़ हमें कंप्लीट करना था इस इंटरव्यू में। तो एक्चुअली ये इंटरव्यू में मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यूअर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछते हैं। वो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया कि हमारा जो जैसे हमारा ये व्यू मॉडल में है क्या, जैसे हम इसको व्यू मॉडल में कैसे हम इसको बेस्ट वे से कर सकते हैं, वो केस हो गया। फिर हमारा केस हो गया कि हमारा फ़्लो क्यों यूज़ करते हैं हम, और लाइव डाटा क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो वो केस मैंने बता दिया कि क्यों यूज़ करते हैं फ़्लो में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और फ़्लो हमारा लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता है, बट जबकि हमारा लाइव डाटा लाइफ साइकिल अवेयर होता है। लाइफ साइकिल अवेयर का मतलब ये है कि अगर हमारा एक्टिविटी रीस्टार्ट या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ या फिर रीस्टार्ट होता है, रिक्रिएट होता है, तो हमारा जो डेटा है वो मतलब जो हमारा फ़्लो है, अगर फ़्लो तो हमारा लाइफ साइकिल अवेयर है नहीं, तो वो फ़्लो होता रहेगा, वहाँ पर मेमोरी लीक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसको लाइफ साइकिल अवेयर हमें बनाया जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता है, ठीक है, बट हमारा लाइव डाटा लाइफ साइकिल अवेयर होता है। एनी हाउ अगर हमारा एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होता है, स्टॉप होता है, तो वो उसके साथ ही हमारा स्टॉप हो जाता है। बट फ़्लो में क्या होता है कि अगर हम बैकग्राउंड में चले जाएँ और हम इसको लाइफ साइकिल अवेयर नहीं बनाएं, तो हमारा डाटा फ़्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इसमें, जो कि आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और भी सारे केसेस थे कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज़ द मतलब रिपीट ऑन साइकिल का यूज़ क्या होता है। तो रिपीट ऑन साइकिल का यूज़ होता है फ़्लो को लाइफ साइकिल अवेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि कहते हैं कि ये जो हमारा ये हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड थ्रेड है, ये हमारा जॉब रिटर्न करता है। सॉरी, इसका हम टाइप देखेंगे तो ये हमें जॉब रिटर्न करता है। तो उनका क्वेश्चन था कि ये जो जॉब रिटर्न करता है, तो मान लेते हैं कि हमारा एक कोई केस है, एक ऐसा केस है जिसमें हम डबल क्लिक कर रहे हैं कि कोई एक आइटम है, ठीक है, व्यू, उस पर हम अगर डबल क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी वो 2 बार ओपन हो जाएगा, और उस नेक्स्ट एक्टिविटी पर अगर हम कोई बैकग्राउंड टास्क कर रहे हैं तो वो 2 बार कॉल हो जाएगा। तो उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं कि हमारा वो 2 बार नहीं हो। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कोरूटीन स्कोप बनाना पड़ेगा ग्लोबल, ठीक है। एक ग्लोबल कोरूटीन स्कोप बनाएंगे और उसको यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ दैट कोरूटीन स्कोप इज़ नल। अगर नल है तो मतलब हमारा एक ही, मतलब हमारा ऑलरेडी ये हमारा कॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम इसको कॉल करवा देंगे। लेकिन अगर हमारा वो नल नहीं है, मतलब हमारा ये ऑलरेडी बन चुका है, कॉल हो चुका है, तो हम इसको रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। क्लियर है। अगर हमारा ये जॉब हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोरूटीन स्कोप हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि नल है कि नहीं। अगर नल है तो हम इसको यहाँ पर आने देंगे अंदर कोड में कि हमारा इनिशलाइज हो जाए, हमारा व्यू मॉडल स्कोप जो लॉन्च है, हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है, वो अपना काम करेगा। लेकिन अगर नल नहीं है तो ये रिटर्न हो जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। तो मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बोला ओके या फाइन। तो यही सब सारे मतलब क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। और बाकी जैसा कि मैंने बताया कि यू शुड फॉलो द लेटेस्ट आर्किटेक्चर, एंड बोनस पार्ट हमें मेक श्योर कि हमें बोनस पार्ट कंप्लीट करना है, बिकॉज बोनस पार्ट हमें थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देता है। ओके, दिस इज़ इट। अगर आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हम ये डाउट है या समथिंग, आपको जो भी डाउट है आप उसको लिखिए। मैं श्योरली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि वी नीड सोर्स कोड, तो मैं उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इफ़ दिस रियली हेल्प्ड यू इन योर क्लियरिंग द इंटरव्यू, क्लियरिंग योर डाउट्स एंड ऑल, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and please don't forget to subscribe my channel,
and till then, happy coding, and yeah, bye, thank you.